Assalamualaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. In this video, we will discuss the case number first of the combination. Although you have learned the tenses individually, like present simple action, present simple state, past simple action, and past simple state, but in this video, this lesson is actually for you because we normally get confused how to make the prolonged sentences, how to combine the sentences together, what kind of the sentences we should make whenever we get any sort of the question to give answer. क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, ऐसे लिखने के लिए, पैराग्राफ राइटिंग के लिए आपको लंबे सेंटेंसेस यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की ज़रूरत होती है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इज जस्ट नथिंग, यू मे ऐड सम वेरिएशन इन अ सिंपल सेंटेंस, सो दैट्स हाउ यू गेट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. डिस्कस करते हैं कि कॉम्बिनेशन नंबर फर्स्ट. ये सीरीज़ अब चल पड़ी है और इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट को पास्ट से, फिर प्रेजेंट को किसी और टेंस के साथ. सो यू नीड टू बी फोकस्ड वाइल ड्यूरिंग द लेक्चर. प्रेजेंट एंड पास्ट कोई नया नाम नहीं है. वी ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज प्रेजेंट एंड व्हाट इज पास्ट. इफ आई टॉक अबाउट द प्रेजेंट वन, सो माई implementation is just here about the present simple action and present simple state. In the previous lesson, we have discussed myriad time about the past, present simple action and state. Present simple action gives you the sound in Urdu, काम होता है, and present simple state that's called the condition. For example, वो ऑफिस का मुलाजिम है, he is the employee of the office, that's called state one. वो ऑफिस में काम करता है, he works in the office, करता है और वहाँ पर मुलाजिम है. बोथ सेंटेंसेज आर ऑफ द डिफरेंट नेचर. सो इसको हम डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पास्ट. फर्स्टली वी नीड टू क्लियर आर पास्ट डाउट्स बाय द रफ वर्क. पास्ट ज़माना माजी, ज़माना माजी में कोई काम हुआ था या सिर्फ किया. कोई भी सेंटेंस है या तो याद रखिएगा कोई काम किया, कोई काम हुआ या कोई काम हुआ था. अगर था आ जाए तो भी ठीक है, एंड इफ़ यू थिंक दैट देयर इज़ नॉट एनी वर्ड ऑफ था, तो फिर भी अगर ये आ रहा है कि कोई काम हुआ, किया या कर लिया, मतलब आगे है नहीं आ रहा, बस डायरेक्टली इन्होंने वर्ब के ऊपर एंड कर दिया. फॉर एग्जांपल मैंने पानी पिया, वो आया था, वो आया, तो ये सब पास्ट है. एंड पास्ट सिंपल वो टेंस होता है जो आपके पास्ट यानी माजी की बात कर रहा है. पास्ट दैट्स कॉल्ड द डिटेल्ड. इसका फॉर्मेट कुछ यूँ होता है कि सब्जेक्ट, then you follow the verb second form and object. Whenever you need to make the negative sentences of the past, so you should add did not, because in the present we have to add do and does, but in the past we have to add did, and as the did comes, so we can convert our second form of the verb into the verb first form, and at the end we get the object. In terms of making the question or the interrogative question, did comes at first, like the same rule of the present simple do and does always come at first in interrogative question. So in the past interrogative, did will come at first and subject were first form and object. For example, I walked yesterday. I walked yesterday, मैंने walk की थी yesterday. I did not walk. When I convert my positive sentence into the negative one, so did not, and with the help of the did not, I get the verb first form again, because second form वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है, verb first form में. Did I walk, क्या मैंने walk की थी, did I walk. The second sentence, he mocked about you. mock का मतलब होता है नकल उतारना. उसने आपके बारे में नकल उतारी थी, he mocked about you. If I say कि नहीं उतारी थी, he did not mock about you. क्या उसने आपके बारे में नकल उतारी थी, did he mock about you. That's all about the past simple tense. Now we will convert the past simple into the different combination. So you need to be there while during the lecture. For example, he is an employee. अब ये हमारा present simple state है. He is an employee. Employee यानी वो एक मुलाजिम है, comma, he goes to office, वो ऑफिस जाता है. That's my another sentence, he goes to office. और मैंने यहाँ पर से कॉमा लगाया है सेंटेंस से दूसरे में जाने के लिए. बट yesterday he did not. यहाँ बात हो रही है कि वो रोज़ाना ऑफिस जाता है पर कल नहीं गया. डिपेंड्स ऑन यू कि आप यहाँ पर did not go भी कर सकते हैं, अदरवाइज खाली did not से भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा मकसद है he goes to office but yesterday he did not. मैं यहाँ पर जाने के वाले से बात कर रही हूँ, तो दोबारा मुझे go लगाने की ज़रूरत नहीं थी. फॉर एग्ज़ाम्पल, वो ऑफिस का मुलाजिम है और वो रोज़ाना ऑफिस जाता है लेकिन कल नहीं गया था. कल नहीं गया था, दैट्स कॉल्ड पास्ट सिंपल. जाता है प्रेजेंट सिंपल एंड मुलाजिम है प्रेजेंट सिंपल स्टेट.
वी आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। अब आपको देखते ही समझ आ जाएगा, इस एम आर के साथ कोई वर्ब नहीं है, दैट्स कॉल्ड द एडजेक्टिव। हम यहाँ पर क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं, यानी हम अपने आपको क्या बता रहे हैं, वी आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, हम क्लास 8 के स्टूडेंट हैं। वी लर्न इंग्लिश, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल, हम इंग्लिश सीखते हैं। बट येस्टरडे वी डिड नॉट गिव टाइम टू इंग्लिश, हमने कल कोई भी वक्त इंग्लिश को नहीं दिया। वी डिड नॉट गिव टाइम टू इंग्लिश, डिड नॉट गिव टाइम टू इंग्लिश यानी कोई वक्त इंग्लिश को नहीं दिया। ये दोनों सेंटेंसेस इत्तेफाक से नेगेटिव के आ गए, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नेगेटिव बनेगा, डिपेंड आपके अपने ऊपर करता है। ही इज़ अ को वर्कर, को वर्कर मीन्स आप किसी जगह पर काम करते हैं, आपके बराबर में जो कलीग है काम करने वाला, उसको को वर्कर कहते हैं। ही इज़ अ को वर्कर, वो आपके वहाँ पर बराबर में काम करता है। ही कम्स अर्ली, वो जल्दी आता है। ही कम्स अर्ली बिकॉज प्रेजेंट सिंपल है, ही कम्स अर्ली। एंड ही केम अर्ली ऑल्सो, अब यहाँ पर मैंने येस्टरडे नहीं लगाया, अगर आप समझते हैं यहाँ येस्टरडे लगाना तो लगा दें, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ येस्टरडे यानी गुजरे हुए कल की बात हो। मैं यूँ भी कह सकती हूँ कि हाँ वो जुमेरात को जल्दी आया था। ही ऑल्सो केम अर्ली ऑन थर्सडे, सो डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पर मैंने ही के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई है केम, बिकॉज कम की सेकेंड फॉर्म केम, वो उस दिन भी जल्दी आया था। देयर आर दी सम नोट एज वेल, you can add preposition of time. In the previous lesson we have discussed the preposition of time in, on and at. इन sentences के अंदर वेरिएशन अभी हम डालेंगे। You can add simple, simple means state, action and past simple, मतलब simple से मतलब है अब यहाँ पर ऑलरेडी हमने सारे शुरू में जो sentences हैं वो present simple state के हैं। So it's also depends on you if you would like to make sentence by having the action sentences first. Like these sentences are interchangeable and you can change the sequence of these sentences together. You may use negative and positive sentences both. अब जैसे यहाँ पर already we have discussed the negative sentence in the past. It doesn't mean that you are supposed to use always the negative sentence. नहीं, आप इसको positive भी इस्तेमाल कर सकते हैं. So these are the just dummy example of the combination. So in the next video, I will give you some examples with some variation. If there is any confusion, do the comment and definitely we will reply you back. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.